that God is three. How are you, brother? I'm good, sir. And one in Have you read the Quran? You don't believe it, but that's what the Bible says. Can I give you one? Actually, I don't want to, It's very difficult to explain my method. It should be But- simple though, because बेअदबी नहीं कहते हैं. This is Disrespect. Why don't you think you can take care of this? Actually, it's not like I can't take care of it. It's like Why did God? if I don't read it, I don't know what's written in it. I don't have any understanding of it. So So how will you know what is written on this unless you take it? unless I Give it a try. You know. There's nothing wrong. Yeah, So you are one is okay. Okay. So you guys are sick, yeah. right? So what do you guys worship? What do you guys believe? from Adam. We guys believe that God is just one. Very good. So I have read a. No, there's only one path that can actually take you to one way. different religions. They are different paths. And these prophets made the message. So if we go, No. if we go from here to Millwoods, we can go through this way. We can go through that way. Okay. We can go like several different ways. But Millwoods is just one. Okay, I hear you. So They would go towards something. there So if there is, I got it. religions are like, Let's say if there is no entry to those roads, and you try to go from there, you're gonna get a ticket. I'm gonna get ticket. If there is no entry to those routes, you decided, okay, put it on GPS. There's a shortcut there. Okay, bhai, Millwoods jana hai. Let's not go from Anthony Henday. Let's not go from White Mud. Let's go take a shortcut and everything. So police have actually put a no entry there. Say, brother, you cannot take a shortcut. You know, if you take a shortcut, you're gonna get a ticket, right? So you cannot reach right through wrong means, right? So I have read the books of I have read So the do you can you just hold it? I Yeah. will just take it later on. yeah, okay, very nice. Do you believe that what did you say that just मैं भूल गया कि कल भी आखिरी गल हुई. You believe in God की बात हो रही थी. Yeah, so God आप हिंदी बोलते हो? हाँ तो हिंदी में बात कर लेते हैं, easy रहेगा. हाँ. So पंजाब से. So मैं कह रहा था कि आपने क्या बात कही आखिरी मुझे याद भूल गई. हम रॉन्ग एक जगह पे जा रहे हैं, Yeah. रास्ते दूसरे ले रहे हैं. How could कोई रिलीजन गलत कैसे है? अभी हम तो मसला ये है, तो आपको अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा, ये करना आपको चाहिए. मैं एक स्टूडेंट टू कंपैरेटिव रिलीजन है. आई हैव स्टडीड डिफरेंट रिलीजन्स. ओके, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स व्हाट पीपल बिलीव इन टुडे, बहुत सारे रिलीजन्स जो लोग मानते हैं आज के दौर में, they believe in those religions because those religions were not based out of those religions are established after a saintly person died. Okay, and those religions were man-made religions. Get what I'm saying? For example, most of the Christians, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछना, रुका के मैं फिर से दोहराऊंगा, 50 बार दोहराऊंगा, आप मेरे को पूछते रहना. ओके, मिसाल के तौर पे ईसाईयत हो गई, क्रिश्चियनिटी हो गई. इन क्रिश्चियनिटी, the Christians who call themselves to be Christians, they follow Jesus Christ, may peace be upon him. They follow Isa alayhi salam. They worship Jesus Christ. You know Jesus Christ. Yeah, Jesus. they are God. Yeah. No. So you'll have to understand. Don't come to conclusions. Okay. Let's be open-minded when we have this conversation. Okay. What we are trying to say right now is that most of the religions that people actually believe in today, those religions were based out of after a person has passed away. Those Most religions of, were right? most of the religions. Most of. the religions. Okay. Not every. Most of the religions. Not every. Most of the religions. When I say most of it means equally, like synonymously, right? For example, in Sikhism as well, Guru Nanak Sahib जो है पहले गुरु थे, उसके बाद 10 गुरु आए. गुरु गोविंद साहब 10वें गुरु थे, right? और गुरु नानक साहब का teachings क्या थे? Guru Nanak Sahib. What was his religion himself? He was influenced by the teachings of Hinduism and Islam. Yeah. Correct. वो करे सभी He was influenced by the teachings of Hinduism and Islam. Correct, right? So after Guru Nanak Sahib passed away, the religion was based out of people who followed his teachings. Correct. So this is what I was trying to say. That most of the religions what we have today in the world, Okay. they are based out of after a saintly person or after a godly person has passed away. For example, in Christianity, Christians started following Jesus Christ and peace be upon him after Jesus Christ and peace be upon him's ascension to heaven. Okay. For example, अब जो है बुद्धिज्म हो गया, जो लोग गौतम बुद्धा को मानते हैं, गौतम बुद्धा basically his teachings was sukha and dukkha, giving glad tidings and warning them against sin. This was his teachings. Gautama Buddha never claimed himself to be God, but most of the people who follow Gautama Buddha today, his name was Siddhartha.
Gautam Siddhartha. Yeah. So most of the people who believe in Gautama Buddha today, they worship Gautama Buddha. They have distorted the teachings of Gautama Buddha. उनके teachings को तोड़ के मरोड़ के जो है उनकी इबादत करना शुरू कर दिया, जबकि गौतम बुद्धा ने कभी भी नहीं बोला कि मेरी इबादत करो. गौतम बुद्धा himself was a godly person who used to worship God. His teachings was to convey the message of good and to warn people against falsehood and to warn people against wrong. This was the message of all the prophets. For example, गुरु नानक साहब की अगर हम बात करेंगे, अगर आप जो है गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे, कहा था ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान. या तो अगर आप या तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, अगर जो है किताब अगर पढ़ेंगे, उसका जापजी साहब अगर पढ़ेंगे, उसका जो है पहला चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है मूल मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे को मालूम है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ खाली, राइट. तो हाँ, मूल मंत्र अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है खुदा के बारे में, ओके, खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि गॉड जो है मैनिफेस्ट फॉर्म में उसको जो है ओमकारा कहा गया, गॉड को जो है अनमैनिफेस्ट फॉर्म में उसको एक ओमकारा कहा गया, उसको परवरदिगार कहा गया, उसको जो है रहीम कहा गया, उसको जो है रहमान कहा गया, उसको वाहे गुरु कहा गया, उसको एक रब कहा गया, राइट. तो ये सारे के सारे, अब ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर आप कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान के अंदर एक चैप्टर है सूरतुल इखलास करके, ओके, सूरह इखलास 112 नंबर वाला चैप्टर है, 112 नंबर वाला चैप्टर है. उसके वर्सेस 1 to 4 अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें खुदा ताला अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इखलास में, सूरह नंबर 112 आयत 104 तक, अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह ताला एक है, कह दो कि वो खुदा ताला एक है, कह दो कि वो गॉड सिर्फ एक है, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो 40 नहीं है, वो 3300 करोड़ नहीं है जैसे कि हिंदू मानते हैं, राइट. अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे कि अल्लाह समद, वो अल्लाह असमद है. असमद का मतलब क्या है? असमद का मतलब ये है कि हर वो चीज जो मौजूद है इस कायनात में वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो जर्रे जर्रे में नहीं है, कंकर में शंकर वाला मसला नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं. अगर मैं बोलूंगा कि भगवान हर चीज के अंदर है तो 10 मिनट भगवान ये कचरे के डब्बे में भी हो गए, फिर वो तो खुदा की तौहीन हो गई. वो तो भगवान फिर वॉशरूम में भी हो गए, वो तो खुदा की तौहीन हो गई. सही बात है, राइट. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं खुदा की तौहीन कैसे होगी? क्योंकि व्हाट आई थिंक, जो मेरा बिलीफ है कि जर्रे जर्रे में भगवान है, जो मैं सोचता हूँ. एंड क्यों है? क्योंकि अगर भगवान ना होता तो ओके, तो एक गुरु नानक देव जी की एक लाइन है, तो उसमें लिखा है कि मास कर मूर्ख झगड़े, ओके, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग खावे, किसमें पाप समाने. दैट मीन्स कि मास कर जो इस बात पे झगड़ते हैं कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो बेवकूफ होते हैं. सही से. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि किसमें पाप है. सही. साग खाना, साग में पाप नहीं होता, साग जीवित नहीं होता, साग में भी लाइफ होती है. तो उसी तरह की हर चीज में लाइफ है. पहले तो जो चीज जिसमें लाइफ नहीं होती हम वो खा नहीं सकते, सबसे पहली बात. मुर्दार जो है, हम इसको नहीं खा सकते, हम कोई जमीन के किसी टुकड़े को नहीं खा सकते. एंड देन क्यों नहीं उसको खा सकते? क्योंकि अगर भगवान उसमें ना होता तो उसकी उपज ही ना होती, उसकी वो क्या कहते हैं, उसकी वजूद में नहीं आता, एग्जिस्टेंस नहीं होता उसका, एग्जिस्टेंस नहीं होता. हम अपने आजकल का जो ह्यूमन है वो अपने आप को ये दिखा रहा है कि हाँ, जो मेरे पास इतनी नॉलेज है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है, एंड आज अभी तक हम जुपिटर तक भी नहीं पहुंच पाए. हमारे अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से हम डिफाइन नहीं कर पाए कि हाँ, तो अपने अंदर ही हमारे कितने ब्रह्मांड है. हमारे अगर आप साइंस में बिलीव करते हो तो ये आई थिंक कि आपको पता होगा कि हमारे अपने अंदर की इतनी ऐसी बातें हैं जो हमें खुद को नहीं पता होती. सही. अभी तक जो प्रूफ भी नहीं हुई. करेक्ट. तो अगर हमारे में भगवान नहीं है तो अगर हम मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, देन वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी वांट, वी आर स्मोकिंग एंड वी आर ईटिंग एवरीथिंग. आई मीन कुछ भी हम कर रहे सही. समझ गया मैं आपकी बात. हैं, तो वो गलत है. सही.
मेरे लिए पाप करना और पुण्य करना वो बात नहीं है। मेरे लिए ये है कि इन द लॉन्गर रन हमारे पास जो आगे जो रिजल्ट आएगा हमें उसको देखना है। Right. अगर कई लोग कहते हैं कि इस सन में इतने लोग मर गए बिकॉज कि उन्होंने ऐसा किया था तो उनकी वजह से इतने लोग मर गए, बट वो इतने लोग मरे तो उनके मरने के बाद जो उनको हम कहते हैं शहीद हो गए। शहीद वैसे बेसिकली कुरान का ही वर्ड है। शहीद का मतलब Martyred. सॉरी Martyred. नहीं, माटा नहीं होता, शहीद का मतलब कुछ और होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो आप? इंग्लिश में ना? शहीद का मतलब नहीं, हिंदी है। शहीद का इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करेंगे तो मार्टर्ड ही है वो। मार्टर्ड या कहते हैं सो शहीद इज समथिंग एल्स, मुझे याद नहीं आ रहा। That's okay. If you say that, then we'll probably try to understand the meaning at least. So, Yeah. Essence समझ में आ गया तो काफी है। तो मैं कह रहा था कि जब लोग मरे तो उनके हमारे अपने रिलीजन के लोग आगे तक बढ़े। जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं तो उसको खोल देते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, वो आगे बढ़ती है। जस्ट लाइक दैट कि हमने किसी बंदे को सप्रेस किया, हमने किसी बंदों को मारा, जो कुछ भी हुआ तो उनको सप्रेस किया तो वो बाहर निकले हैं, ज्यादा आगे बढ़े हैं, वो समझ गया पीछे मैं नहीं हटे, वो आगे बढ़े। मैं समझ गया आपकी बात पूरी। I totally understand that, but then most of the thing that you have said, brother, आप जो कुछ चीजें जो बताए हैं ना, उसका एसेंस कहाँ से है, उसका बेस कहाँ से है? मिसाल के तौर पे I want you to understand this now. उसका बेस कहाँ से है? हाँ, तो मेरे हिसाब से आप जैसे बोल रहे थे ना, मैं मेरे हिसाब से अब मेरे हिसाब से झाड़ को काटना गलत है, किसी और के हिसाब से ठीक है। असल में तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिक्टेट नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। आप काम करते हैं ना, कहाँ पे काम करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड है आप। आपका साथ का कोलीग अगर आपको कोई डिक्टेट करेगा रूल्स रेगुलेशंस, आप बोलोगे जा भाई अपना काम कर, आई हैव अ बॉस हु आई एम गोना लिसन टू, right? So in the same way you cannot have somebody else dictate what is moral and immoral, what is right and what is wrong, what is correct and what is wrong. वो डिक्टेट नहीं कर सकता कि ना। तो that's the reason हम क्या बोलते हैं, मैं अपनी पुरानी बात पे आऊंगा क्योंकि वो बात आधी रह गई थी, ये बात को मैं करके फिर दूसरी बात पुरानी बात पे आऊंगा मैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं मालूम है कि we have to rely on someone who is a intelligent, wise central authority who knows how the human being should be morally, how the human being should behave, because he is the one who has created us. So he would definitely know how the human being should be. अगर आप डिसाइड करेंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं खाऊंगा, तो अगर आप इंसानों को दे देंगे ये एक, हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, तो अल्टीमेटली क्या होता मालूम है, अगर इंसान अपने आप की चीजों को अगर डिसाइड करने लगेगा मेरे भाई, तो क्या होता मालूम है, यू आर अल्टीमेटली गोना फॉलो योर डिजायर्स। सही बात है, जो हमको अच्छा लगेगा वो करेगा। तो कल के दिन क्या होगा मालूम है, आपको लगेगा कि भाई रेपिंग इज गुड, आप जाएंगे रेप कर देंगे, तो वो सोसाइटी में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए डिक्टेट नहीं कर सकता। तो दैट्स द रीजन वी से दैट द क्रिएटर इज द वन हु हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस, so he would definitely know how the human being should be. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, एक चैप्टर के अंदर, सूरह क़सस के अंदर, सूरह क़सस एक चैप्टर है कुरान के अंदर, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं 48 नंबर वर्ड से अगर आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने उन लोगों को क्या नहीं देखा, वो लोग जो अपनी शहवात, अपने हवा, अपने डिजायर्स, अपने विम्स, अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, अपने खुद की ख्वाहिशात को फॉलो करते हैं, अपने नफ्स को फॉलो करते हैं, गाइडेंस को छोड़ के, क्योंकि उनके पास बेस नहीं है कुछ, they don't have a base. So what happens when you gonna decide everything on your own? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, मेरे को फेरो रोशे अच्छे लगे मैं फेरो रोशे खा लूंगा, कल के दिन मेरे को शराब अच्छी लगी मैं शराब पी लूंगा, कल के दिन मेरे को जिना करना पड़ा, जो है अडल्टरी फॉर्निकेशन करना पड़ा, मैं जाके वो कर लूंगा। तो where are you gonna put a limit? Where are you gonna have a, so what happens, you are following your desires, and when you follow your desires you become enslaved to your desires. आप जो है स्लेव बन जाएंगे अपने डिजायर के, और जब अपने स्लेव बन जाएंगे अपने डिजायर के, आप क्या करेंगे मालूम है, आप उसको वर्शिप करने लगेंगे, आप उसको ओबे करने लगेंगे, आप उसको लव करने लगेंगे, आप उसको ओबे करने लगेंगे, राइट? हम क्या बोल रहे हैं मालूम है, योर वर्शिप, योर ओबीडियंस, योर लव, योर ग्रेटिट्यूड, योर एक्सटेंसिव प्रेज शुड ओनली बिलोंग टू ऑल द क्रिएटर। क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कल ये अच्छा लगेगा, ये कर लेंगे, ये अच्छा लगेगा, ये कर लेंगे, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक मिसाल पेश करते हैं, एक मिसाल देते हैं अल्लाह ताला। Almighty God gives an example in the Quran. He sets a parable. He says that a slave who has 10 masters,
A slave who has 10 masters, is he better or the one slave who has one master? उस इंसान के दिमाग के बारे में आप सोचो जिसके 10 मास्टर है। आपके 10 बॉस अगर है तो आप पागल हो जाओगे एक दिन की नौकरी में। अरे ये क्या है रे भाई, ये करने को बोल रहा है, 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 क्या क्या करूं? ये भाई ये जिनका एक ही मास्टर है, ये बोलेंगे भाई मैं तो चिल हूं, आई ओनली हैव वन बॉस। सो अल्लाह ताला कुरान में मिसाल पेश करते हैं उस चीज की कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए स्लेव हु हैज 10 मास्टर्स? 10 मास्टर्स मतलब यू हैव मेड डिजायर्स योर मास्टर्स, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वन हु हैज ओनली वन मास्टर? He has guidance and he only follows that guidance. तो अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में अपने आप को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करके ये बोलते हैं कि मैं बता रहा था वो चीज, एंड देन जो है कन्वर्सेशन अपना नो एंट्री पे चले गया। ऐसे होगा, नो एंट्री पे जाएंगे तो जाएंगे भाई पे, लेकिन 10 जगह चक्कर खा के टिकट लेके जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, जहाँ से जाने को बोला गया वहीं से जाना पड़ेगा अपने को, राइट? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा नहीं, राइट। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इखलास जो मैं बताया, सूरह नंबर 112 कुरान का, चैप्टर 112 वर्सेस 1 to 4 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह ताला एक है। मैं बोलता हूँ आप सबके सब लोग जो है एक खुदा की इबादत करने की मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं एक खुदा की इबादत करो, मैं भी मान रहा हूँ एक खुदा की बात करो, आप भी मान रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, अब हम ये बात पे एग्री कर लिए कि हमको एक खुदा की इबादत करना है। अब अपने को ये मालूम करना है कि वो खुदा है कौन आखिर जिसकी हमको इबादत करना है। मैं बोलूंगा भाई प्रेसिडेंट की इत्तेबा करो, ओबे द प्रेसिडेंट। लेकिन कल के दिन आके एक टॉम डिक एंड हैरी बोलेगा कि ये प्रेसिडेंट है, वो दूसरा बंदा बोलेगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये बोलेगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये बोलेगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप क्या करोगे, हर एक को प्रेसिडेंट ले लोगे क्या? नहीं, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि कौन सा जो है। पर हम कैसे माने कि इस्लाम जो अच्छा है? हाँ वो बताओ, और सिक्की में मतलब मैं भी आऊंगा मैं वहाँ पे। ये सवाल आप जो है पाक करके रखना, मैं आऊंगा ये डेफिनेशन देने के बाद। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज है का क्या मतलब है? दैट मींस एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, हर चीज जो इस दुनिया में मौजूद है वो चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हर चीज दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज टू डिपेंड ऑन हिम, एंड ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। So you cannot have a God who requires to eat, who requires to sleep. आप एक चीज में बिलीव करते हो कि ऑल ऑफ अस, एवरीथिंग ऑफ अस, इवन की जो भी है इस दुनिया में वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। हाँ, जो चीज वही तो मैं बताया अभी, अगर आप गौर से सुन रहे नहीं थे मेरी बात, मैं बोला कि एनीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट डिपेंड करती है। तो अल्लाह ताला की जात वो है, खुदा ताला की जात वो है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। यू कैन नॉट हैव ए गॉड, आप ऐसी चीज को खुदा नहीं मान सकते जो चीज किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे आप किसी चीज को खुदा समझ के इबादत कर रहे हो, बल्कि वो खुद की चीज जो है, वो खुद जिसकी आप इबादत कर रहे हो खुदा समझ के, वो खुद किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे आप जो है किसी चीज की खुदा समझ के इबादत नहीं कर सकते जो खाना खाना चाहता है, who requires to eat, who requires to sleep, who requires to have sex for his desires, God getting married and begetting children, God going to the washroom to relieve themselves, and when you don't find a washroom they go hide behind some trees and mountains. Think about it. ऐसी चीज की आप इबादत कैसे कर सकते हो? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बेनियाज है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और कोई चीज वो इंडिपेंडेंट है हर चीज से। वो सिक्की में भी बताया, राइट? हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं लम यलिद वलम यूलद। उसके बाद लम यलिद वलम यूलद मतलब ना उसने किसी को पैदा किया है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। दैट मींस उसकी कोई औलाद नहीं है, ना उसके कोई माँ बाप है। उसकी अगर औलाद होगी तो उसकी औलाद उसके जैसी दिखेगी, आप आपके पेरेंट्स के जैसे दिखोगे। आपके पेरेंट्स अगर होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे सुपीरियर हो गए। तो खुदा ताला वो जात नहीं है जो बच्चे पैदा करे और उसके पेरेंट्स जो है वो उससे सुपीरियर हो गए, तो उससे सुपीरियर कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ये चीज को साफ करके बता रहे हैं कि ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कुछ भी नहीं है। The moment you can contain a mental picture of that creator, of that being who you call to be the creator, जिस क्षण आपका दिमाग में एक तस्वुर आएगा, the moment you can contain a mental picture, that being cannot be God. Say it be anything. Say it be anything. वही चीज जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि गॉड इन जब मैं बोला कि जापजी साहिब के अंदर जब लिखा हुआ है कि ओमकारा, जब मैं बोला गॉड इन मैनिफेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज ओमकारा, गॉड इन मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज एक ओमकारा, इज कॉल्ड। तो आप जब बोल रहे हो कि भाई खुदा हर चीज के अंदर है, जर्रे जर्रे में खुदा है, आप जब बोले ये बात, तो आप आपके खुद की किताब को फॉलो नहीं कर रहे।
क्योंकि खुदा का जो तस्वुर है आपके किताब के अंदर, खुदा का जो तस्वुर है आपके किताब के अंदर, उसका मतलब ये है कि वो एक है, उसको कोई अपनी आंख से देख नहीं सकता। आप जब बोले कि इसके अंदर खुदा है, हाँ, आप जब बोले कि इसके अंदर खुदा है, उसके अंदर खुदा है, वो झाड़ में खुदा है, वो कंकर में खुदा है, वो कचरे में खुदा है, तो दैट मीन्स आप जो है वो जो बेसिक जो है ना, एथॉस जो है ना, उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर दिए। मेरे सामने की जो खुदा है हमारे दिल में, सब इंसान के ये चीज समझ में आ गई ना आपको? ये तो समझ। हाँ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब जब बोले ना, मैं क्या बोलता हूँ कि हर चीज में खुदा नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाया कुरान के अंदर, सूरह हिजर के अंदर, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह ताला फरमाए कि द नॉलेज ऑफ गॉड is in all human beings. God himself does not go reside in human beings. He's outside of that. The moment you say Almighty God resides in some human beings, that means that human beings requires to eat. He dies. He goes to washrooms. He has sex. की नॉलेज हमारे अंदर है। God की नॉलेज हमारे अंदर है। God की नॉलेज का मतलब क्या है कि Almighty God कुरान में फरमाते हैं सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 के अंदर, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि द नॉलेज ऑफ गॉड, द फितरा, वो जो फितरा जो है ना, फितरा मतलब द नेचुरल इंक्लिनेशन, द नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग दैट ही नोज दैट देयर इज अ क्रिएटर। वो जो नॉलेज है ना, वो हर इंसान के अंदर है। उसको मालूम है कि द मोमेंट ही लुक्स एट द सन ही इज रिमाइंडेड ऑफ द क्रिएटर, द मोमेंट ही लुक्स एट द मून ही इज रिमाइंडेड ऑफ द क्रिएटर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 के अंदर, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यनहु अन्नहुल हक़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि soon we shall show them our signs in the furthest regions of horizons into their soul until it is clear to them that this is the truth, that this is the truth. The moment you look at the sun, you are reminded that there is a creator. सन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा है जिसने उसको पैदा किया हुआ है। तो जो लोग सन की इबादत कर रहे हैं, सन की वर्शिप कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि द सन सेट्स। हाउ कैन यू वर्शिप ए गॉड हु सेट्स? सही है। जो लोग मून की इबादत कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि द मून आता भी है, जाता भी है, राइट? कई महीनों तक मून दिखता भी नहीं है, चांद दिख गया आज बोलते देखो। सही है। तो ये कौन सा खुदा है जो है कभी चले जाता है कभी आ जाता है? तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि द मोमेंट यू लुक एट द सन एंड द मून, द मोमेंट यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन सेल्फ, यू आर रिमाइंडेड दैट देयर इज अ क्रिएटर। ये देखो अपनी शुरुआत कैसे हुई। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान के अंदर कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। सूरह अल इमरान के अंदर 6 नंबर वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। इट इज अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ऑलमाइटी गॉड, हु शेप्स यू इन द वूम ऑफ योर मदर। You were a minute quantity of mingled fluid omitted. क्या? You were a minute quantity of mingled fluid omitted. आप जो है एक स्पर्म का खतरा थे आप। हाँ। How did this come into existence? कैसे आए? तो अल्लाह ताला ये चीज को बता रहे हैं कि आप क्या थे आप? You were a minute quantity of mingled fluid omitted. कितने बार जो है वो खतरे निकल जाते नहीं है हमारे, सही है, राइट? वो खतरे को जो है अल्लाह ताला माँ के रहन में रख के आपको शेप करे। दिस इज व्हाट अल्लाह सेइंग दैट ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड यू इन द वूम्स ऑफ योर मदर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो क्रिएटर है। तो जिन लोगों को आप अल्लाह को छोड़ के इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर मिसाल फरमा रहे हैं सूरह हज के अंदर। कुरान का एक चैप्टर है सूरह हज, उसकी 73 नंबर वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उसके 73 नंबर वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग अल्लाह को छोड़ के जिसकी इबादत करते हैं, कि कोई भी इंसान जो अल्लाह को छोड़ के किसी और चीज की इबादत करता है, अल्लाह ताला मिसाल देके फरमाते हैं कि वो लोग जिस चीज की इबादत करते हैं वो एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। मक्खी मालूम है आपको? एक फ्लाई, वो एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला मिसाल को कंटिन्यू करते हुए फरमाते हैं, बहुत बेहतरीन मिसाल है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि द पीपल हु वर्शिप एनीवन बिसाइड्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो लोग अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, खुदा ताला के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, जिनकी ये लोग इबादत करते हैं, वो लोग एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट क्रिएट ए फ्लाई। And if the fly happens to snatch away something from them, subhanallah, look at that. And if the fly happens to snatch away something from them, the people who they worship besides Allah subhanahu wa ta'ala, if the fly happens to take away something from them, they don't have the power to bring that back. So feeble, weak are the ones who worship, and weak are the ones who's been worshipped. सही है, जो करता है और कराता वो है दोनों भी weak है। तो Almighty God is above that, brother.